حضرات السلام علیکم۔ ہم سب سے پہلے اہلیان ٹاؤن ایریا گاخوش کی طرف سے صحافی حضرات کا مشکور ہیں جو ہماری مختصر کال پر آج کی پریس کانفرنس کو کوریج دینے آپ آئے ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کی وساطت سے ہم حکومت پاکستان، وزارت کمیونیکیشن جی بی گورنمنٹ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ جی بی کے توجہ ایک عوامی مفاد کے ایشو کی طرف توجہ کروانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ گجر چھترال ایکسپریس وے کا کام ہونے جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ پر گجر بالخصوص سکارکوئی گلگت سے شندور تک کے باشندوں کے بہت سارے تحفظات موجود ہیں اور اہلیان گاہکوچ اس منصوبے کے تمام متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہوئے ٹاؤن ایریا بالخصوص گاہکوچ بالا اور پائن کے لوگوں کی خدشات سے بذریعہ میڈیا ذمہ داران کو آگاہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تحفظات بہت سارے ہیں، چند اہم تحفظات کی طرف توجہ کروانا چاہتے ہیں۔ گاہکوچ ایریا کے لوگوں نے 1999 میں جب گجر ضلع کی بحالی کے بعد حکومتی تعمیراتی ڈھانچے کے لیے اپنے ہزاروں کنال زمین پہلے ہی پونے داموں سرکار کو دے چکے ہیں۔ اب مقامی لوگوں کے پاس مشکل سے گھر کی تعمیر کے لیے زمین بچی تھی۔ اس میگا پروجیکٹ کے آنے سے بہت سارے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ چند اہم نکات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، پونیال کی حدود میں روڈ کے تعمیر سے قبل معاوضہ 100% ادا کی جائے، نیز زمین کا معاوضہ موجودہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہونی چاہیے۔ نمبر 2، پونیال کے دستور کے مطابق لب دریا سے پہاڑ کی چوٹی تک مقامی لوگوں کی ملکیت ہے، لہٰذا ہماری حق ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے تقسیم شدہ بنجر اراضیات کا بھی مارکیٹ ریٹ کے مطابق ادائیگیوں کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 3، گزشتہ 1 سال میں تعمیراتی میٹیریل کی قیمت 3 گنا بڑھ چکی ہے، لہٰذا روڈ کے ضبط میں آنے والی تعمیرات کے ریٹس بھی موجودہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق تعین کیے جائیں۔ نمبر 4، مکمل طور پر گھر بار سے بے دخل متاثرین کے لیے چولا کمپنسیشن ملنا چاہیے تاکہ متاثرین کی بروقت بحالی ہو سکے۔ ہم آپ صحافی حضرات کے ذریعے ذمہ دار حکام کو آگاہ کرتے ہیں کہ متاثرین کی ان جائز خدشات کو فوری طور پر دور کی جائے۔ بصورت دیگر بیرچی سے برست تک کے لوگ اپنے جائز حق کے لیے احتجاج کا راستہ اپنا سکتے ہیں۔ اس وقت بھی عمائدین پونیال کی کمیٹی رابطے میں مصروف ہے اور جب ہم مشترکہ لائحہ عمل کا جلد اعلان کریں گے اور جب تک ہماری خدشات دور نہیں ہوتے ہم پونیال کے حدود میں کسی صورت کام ہونا نہیں دیں گے۔ لہٰذا یہ چند اہم جو ہمارے نکات تھے، اہم خدشات تھی جو آج ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے بذریعہ میڈیا کے ذریعے ہم حکام بالا کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ گجر ایکسپریس وے جو گلگت چھترال بننے جا رہا ہے اس کی ہم مخالفت میں نہیں ہیں،
रोड बेशक बने, तरक्की होती है ज़िले के अंदर, मगर इसके जद में आने वाले हज़ारों घराने ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहे हैं। एक तो बात यह है कि मौजूदा इस वक्त गवर्नमेंट रेट जो सरकारी रेट है वो जबराने के साथ 28 लाख समथिंग कुछ है। आज और कल की मैं बात कर रहा हूँ, गाकुश जो रेजिडेंटल एरिया है वहाँ पे 65 लाख पर कनाल कल बिकी है। अभी आप खुद बता सकते हैं कि इस वक्त एक कनाल अगर किसी बंदे के दरवाजे पे अगर 2 कनाल ज़मीन है वो टोटली आधा कनाल पे आता है, वो घर से मुकम्मल बेघर होता है। हमारी खदशात हो इसलिए हैं, खदशात बहुत ज़्यादा हैं, हम वक्त ज़ाया करना नहीं चाहते हैं। चंद ऐसे जो नुकात थे, हमारी कमेटियाँ बनती जा रही है, हमारे पोनियाल के अंदर कमेटियाँ हैं, हम बरसत तक फंडर तक गुपिस तक मुकम्मल राबिते में हैं। अगर ये हमने 4 पॉइंट्स जो अहम पॉइंट्स हैं इनको हमने पेश किए हैं, अगर ये पॉइंट्स पे हुकूमत और वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत जिसके भी ये ज़िम्मेदारी होती है फौरी तौर पर इन खदशात को दूर किए जाए। बसूरत दिगर गिलगित का जो इस वक्त हुदूद है उसके अंदर तो काम हो रहा है, वहाँ पे भी कल आपने देखा होगा खटारा मशीनरी ला के वहाँ पे डम किए हुए हैं, कभी बैटरी चोरी होती है तो कभी एक्सीवेटर का तेल ख़त्म होता है, ये ड्रामे होते जा रहे हैं। तो ये जो ही पोनियाल के हुदूद के अंदर दाखिल होंगे, जब तक हमारी कंपनसेशन पूरी नहीं पेड करेंगे तब तक हम काम करना नहीं देंगे, क्योंकि ये पोनियाल गुपिस फंडर आखिर बरसत तक हमारा एक ही मौक़ूफ़ है, हम सब एक ही प्लेटफार्म पे हैं। कोई सवाल? कोशिश में आज जाकर इस प्रोजेक्ट जो है वो टेंडर कुछ कंसर्न तक पहुंच चुका है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो है वो क्या कहते हैं कि हमारी बड़ी कमी। तो एक तो ये है कि कंपनसेशन के लिए जो आप बात कर रहे हैं जी जी वो इसके प्रोसेस होता है, जब प्लान एग्जीक्यूशन शुरू होती है तो ये सारे खर्चा उसी टाइम पे किए जाते हैं। बिल्कुल। अब सेक्शन 4 भी लगा है, एग्जीक्यूशन भी मुकम्मल हो गई है, टेंडर भी हो चुका है, करने के बाद जब काम शुरू हुआ है तो फिर आप लोग इस मुतालबे को लेके आए, इससे इस प्रोजेक्ट के काम के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? देखिए सदर साहब, बात तो ये है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जब ज़िले के 3 नुमाइंदे इस वक्त हमारी असम्बली में है, ज़िम्मेदारी क्योंकि हर बंदा वोट इसलिए देता है कि वो हमारी नुमाइंदगी करे, इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर काम करें। एक आम बंदे को क्या पता होता है कि सेक्शन 4 क्या चीज़ होगी। वहाँ से एक प्रोसेस गुजरते गुजरते जब आखिरी मरहला यहाँ पे तमीराती काम स्टार्ट होता है तो उस गरीब को तब जाके पता चलता है कि आज मेरा घर जा रहा है, मेरी ज़मीन जा रही है, मैं बेघर हो रहा हूँ। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आप खुद देख रहे हैं याकूब साहब कि गेज़र गिलगित से लेकर शंदूर तक यहाँ पे उसके मरामती काम के हवाले से कोई 12 करोड़ बता रहे, कोई 8 करोड़ बता रहा है। इसके ऊपर एक टेंडर हुई थी, आज तक यहाँ गेज़र के अंदर एक कलवट नहीं बनी हुई है। बार बार इस सोशल मीडिया ने भी इस बात पे हर बंदा यहाँ पे आवाज़ उठा रहा है। आप साथी लोग हमेशा इस प्रोजेक्ट के ऊपर, रोड के ऊपर इसके जो हालत हुई है इस रोड की, इसके ऊपर बार बार आवाज़ उठाते हैं। आज तक मुझे ये बताए कि हमारे तीनों नुमाइंदों में से एक नुमाइंदे ने भी कोई आवाज़ उठाई है असम्बली के अंदर? इतना मेगा प्रोजेक्ट है, इनका काम है कि वहाँ पे आपके ज़िले के अंदर इस तरह की एक मसला है, लोग परेशानी में हैं। आगे चीफ कोर्ट के आपने खुद स्टेटस चलाया था, चीफ कोर्ट के चेयरमैन ने भी इस वक्त इसके ऊपर एक्शन लिया था। हमारे नुमाइंदों की आज तक एक आवाज़ इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें कब तक हमारे अपने नुमाइंदों की तरफ हम देखते बैठते हैं, क्योंकि वो आगे आवाज़ उठाता नहीं है। तो हमारी पब्लिक है, पब्लिक जब मुतासिर होती है, जब सफ़र होती है तो हमारी ज़िम्मेदारी है, उसमें हमारी अपनी भी ज़मीनें हैं। आज बेघर होने की तरफ जा रहे हैं तो आखिरी मरला है, जब अगर हम खामोश बैठेंगे तो ये टोटली रोड निकल के आगे जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 अरब इनकी कंपनसेशन बनी हुई है, आगे तकरीबन 11-12 अरब की कंपनसेशन इस वक्त दरकार है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर 50-60 लाख किसी की ज़मीन या घर जा रहा है तो उससे ज़्यादा से 10-15 लाख पेमेंट करेंगे। मज़ीद आपने देखा होगा 10-10, 15-15 सालों से यहाँ पे कंपनसेशन पे नहीं हो रही है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं। तो ये एक तो ये मेगा प्रोजेक्ट के हम खिलाफ नहीं हैं, वेलकम करते हैं। ज़िले के अंदर तरक्की आती है,
مگر بات یہ ہے کہ اس ضلع کو ہم یا اس پروجیکٹ کو خراب کرنا نہیں چاہتے ہیں، مگر پروجیکٹ کے زد میں آنے والے لوگ تو پریشان ہیں نا، یہ بھی تو گلگت بلتستان کے شہری ہیں، یہ بھی تو گلگت بلتستان کے ہی لوگ ہیں۔ ایک بندے کو آپ بغیر کر کے یعنی اس کی مجبوری کو کیوں نہیں سنا جاتا؟ کم از کم یہاں پہ اگر ان کا سیکشن 4 چینج ہوتا ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی ایکٹ لائے، اسمبلی سے ایکٹ لائے، وہاں پہ وہ قانون بنائے، یہ ہمارے جو نمائندے بنا سکتے ہیں۔ یہاں سے قرارداد ضلع کی طرف سے جانا چاہیے، آپ اسمبلی کے اندر ان کے قرارداد پیش ہونے چاہیے، وہاں سے قانون بنائیں۔ کون سی قانون نہیں بنتی ہے اس ملک کے اندر؟ کیوں ہمارے لیے یہ قانون نہیں بنتی ہے، یا ہمارے نمائندوں کی خاموشی بھی ایک سوال نشان ہے؟ اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ بٹوار صاحب، اگر آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں جی یہ منظور اگر نہیں ہوتے ہیں تو فردر آپ لوگوں کا کیا پلان ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں، کل ہم گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، ہمارے جو غریب لوگ ہیں یہ بے گھر ہو رہے ہیں، تو یہ ہم حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں آج، کیونکہ ہمارے ایک قانونی وہ ہے، ہماری حق ہے ہم آواز اٹھائیں۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو اگر اسی طرح یہ ہر روڈ پہ، ہر مسئلہ روڈ پہ آ کر حل ہوتا ہے تو ہم روڈ پہ نکلیں گے، اپنے بچوں کو لے کے نکلیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، پونیال سے ہر گاؤں سے لوگ ہمارے رابطے میں ہیں۔ ٹون ایریا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹون ایریا سے آواز اٹھائے، یہاں سے ہی سٹارٹ لے لیں گے، تو آج ہم نے ٹون ایریا سے ہم نے آواز اٹھائی ہے۔ انشاءاللہ برست سے لے کے بیرچی تک سارے لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں۔ اگر کام سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمارے خدشات کو دور نہیں کریں گے تو ہمارا کام روڈ ہوگا، ہم اس وقت احتجاج کی طرف نکلیں گے۔ اچھا، میرا ایک سوال سلطان خان صاحب سے، آپ ایڈمنسٹریٹو آفیسر بھی رہ چکے ہیں، آپ کو ان چیزوں کا لیگل ایسپیکٹ کا پتہ بھی ہے۔ آپ یہ بتائے گا کہ جب میگا پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا تو وہاں پر کمپنسیشن کی ادائیگی سے قبل کیا وہاں پر کام سٹارٹ ہو سکتا ہے؟ اور میں گزارش کروں گا، یعقوب صاحب نے بھی کہا ہے۔ ایک اور چیز ایڈ کروں سر اس کے ساتھ، جو ابھی جو کمپنسیشن کے جو ریٹس ہیں آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ذرا اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ یعقوب صاحب نے کہا کہ سیکشن 4 بھی نکلا ہے، سیکشن 4 کے لیے بھی قانون میں ریونیو ایکٹ ہے، اس کے مطابق 6 مہینے کے اندر سیکشن 4 کے اجرا کے بعد پیمنٹ ہوتی ہے تمام۔ جب نہیں ہوتی ہے تو سیکشن 4 منسوخ ہو کر نیا سیکشن 4 لاگو ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ قانونی بات میں آپ کو کہتا ہوں۔ ہمارا کلیکٹر جو ہے جب بر وقت پیمنٹ نہیں ہوتی ہے تو نیا سیکشن 4 دے کے آنے والے زمانے میں جو ریٹس ہیں ان کے مطابق وہ نیا سیکشن 4 نافذ کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کو آگے تھوڑا کنٹینیو کریں، کیونکہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پی ایس ڈی پی کا پروجیکٹ ہے، جیسے گزرا ہوا بالکل ہمارے سامنے اس وقت بہت سارے پروجیکٹ اے ڈی پی کے بھی چل رہے ہیں۔ بالکل اے ڈی پی اور پی ایس ڈی پی یہ الگ الگ فٹ ہیں، اس میں بجٹ لگتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ ہمارے جو متاثرین ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ کام شروع ہونے سے پہلے ہمیں کمپنسیشن پیمنٹ دی جائے۔ حالانکہ تجربہ یہ رہا ہے، ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے کسی پروجیکٹ سے متاثر ہیں، تو جب کام شروع ہوتا ہے تو سال 1.5 سال کے بعد جو ہے نا اے ڈی پی کے اسکیموں کے کمپنسیشن ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس پروجیکٹ کے جو ہے کام شروع ہونے سے پہلے کمپنسیشن مل جائے؟ جو وفاق کی طرف سے ہمیں اسکیم آتا ہے اس میں ان کو پہلے پیمنٹ کر کے ہمارا کام شروع کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو بڑی رقم ملتی ہے، لوگوں کو سیٹسفائی کیے بغیر ان کا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سر یہ قانون ہے یا آپ کا مطالبہ ہے؟ آپ کیونکہ ایڈمنسٹریٹو قانون بھی ہے۔ قانون یہ ہے کہ ہماری جو عام اسکیمیں ہیں نارڈن لیول پر ان کو بھی باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے، پہلے پیمنٹ کرو بعد میں اپنا کام شروع کرو، لیکن یہاں پر اندنگری ہے، ابھی تک کئی سالوں سے لوگوں کو پیمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ جو کرنٹ جو ریٹس ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا کلیکٹر جو ہے لیگزر کا جو لیز ہے وہ کلیکٹر ہوتا ہے، کیا وہ ان ریٹس کو ریوائز کر سکتے ہیں؟ وہ آگے سے منظوری لیتا ہے کمشنر صاحب سے، لینے کے بعد موجودہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق ریوائز کر سکتا ہے۔ سیکشن 4 لگنے کے بعد میرے خیال میں سیکشن 4 لگنے کے بعد 6 مہینے کے اندر پیمنٹ ہوتی ہے، کر کے کمپلیٹ کیا تو وہ سیکشن 4 ہو گیا، جبکہ سیکشن 4 ہونے کے بعد انہوں نے 3 سال کے بعد بھی پرانا وہ سیکشن 4 لا کر لاگو کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے، 6 مہینے میں پیمنٹ کلیئر کیا تو وہ سیکشن 4 ہو گیا، نہیں ہو گیا تو ریوائز ہوگا۔ موجودہ ریٹ کے بارے میں سر آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے کیا کس حساب سے ہے؟ اس وقت ہمارے پاس کمرشل ایریا کے علاوہ جو سائڈ میں ایریا ہے وہاں پر ہم نے کل پرسوں سودے لوگوں نے کی ہے 66 لاکھ 70 لاکھ کے اندر کمرشل ایریا تو چھوڑو یہاں ملتا ہی نہیں ہے، تو اس نسبت سے بھی کریں گے تو لوگوں کا تھوڑا بہت گزارا چلے گا۔ آپ کو پتہ ہے سر کہ یہ سرکار کس حساب سے تعین کی ہے؟
फी कनाल मेरे ख्याल में असल रेट जो है 27-28 लाख है, तो उस पर वो जब बदलना लग गया तो 29-30 लाख होगा। तो 30 लाख में हम अपना एक कनाल दे के बाहर जाकर 17 लाख में कनाल खरीदेंगे तो उससे तो हमें मुल्क बदल किया तो ठीक है ना। तंवर साहब, मेरा लास्ट सवाल है आपसे जी। क्योंकि इस हल्के के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो डिप्टी स्पीकर भी हैं नज़ीर हुसैन साहब, उन्होंने पिछली दफ़ा 2 दिन पहले ही उनका स्टेटमेंट था कि अगस्त के महीने में या अगस्त के एंड में वो नए रेट्स जो सरकारी रेट हैं उनको रिव्यू करने जा रहे हैं, उनका डीसी जो कलेक्टर के साथ मीटिंग होने जा रही है। इसी दौरान अगर कोई रेट फिक्स होता है या ज़मीन के मुआवजे बढ़ जाते हैं तो क्या आप उससे मुतमईन होंगे? आप देखें, हमारी तो किसी के साथ वो नहीं है, इख्तलाफ नहीं है। हमारा एक ही मुतालिबा है कि इस वक्त गरीब लोग बेघर हो रहे हैं, घरों से बेघर हो रहे हैं। बेशक डिप्टी स्पीकर साहब करे, मौजूदा गवर्नमेंट अभी सीएम बैठा हुआ है, फौरी तौर पे खासकर गजल इशूज़ के ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। अपोजिशन हमारे बेंच बैठे हुए, उनकी भी ये जिम्मेदारी है। सबसे हम मुतालिबा करते हैं कोई भी बंदा सामने आके काम करे। अभी मसला ये है, इस साहब ने अभी बता दिया कि इस वक्त गवर्नमेंट जो रेट हैं वो 28 लाख है। अभी कल ही जो मैंने ज़मीन यहाँ पे सामने बिकी है ऊपर गांव में 65 लाख 66 लाख बल्कि 66 लाख की कनाल बिकी है। 10 दिन पहले यहाँ पे कमर्शियल में 2.5 करोड़ का एक कनाल बिका है। यहाँ पे ज़मीन 2.5 करोड़ की, यहाँ एसपी चौक में आपको पता होगा 2.5 करोड़ की एक कनाल बिकती है, ऊपर 65 लाख की कनाल बिकती है, वहाँ पे हमें दे रहे हैं 28 लाख। तो हमारी ये मुतालिबा होगी कि या आप एक काम करें, फिर भी हम मान लेते हैं यहाँ पे जो लोग बेघर हो रहे हैं हर गांव के अंदर, उसी गांव के अंदर ही एक कॉलोनी टाइप के उन लोगों को ज़मीनें एक जगह पे गवर्नमेंट बेशक 10 लाख पे उठाए, हमारी कोई एतराज़ नहीं होगी। उसी एक जगह पे उन लोगों को ज़मीन दी जाए, क्योंकि यहाँ से अगर आउट होते हैं गाँव से, उनका रस्म और रिवाज रिश्ते सारे कट जाते हैं। वो तो एक महाजिर की तरह कभी इधर कभी उधर जाएंगे। उसी गाँव के अंदर जो जितने भी गाँव हैं बेरची से लेके आगे बरसत तक या टोन एरिया के अंदर, खासकर जो इस वक्त हमारे ऊपर बर्डन है वो टोन एरिया के, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्राइवेट रेट और सरकारी रेट कम है। इसके आसपास मेन जगह पे कोई बड़ी सी ज़मीन लेके उन लोगों को कंपनसेट करे, पैसे ना भी देते उनको कंपनसेट करके छोड़े, कोई मसला नहीं। हमारी जायज़ डिमांड है, हम नाजायज़ कोई बात की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर उसमें हमारा जो डिप्टी स्पीकर इस हल्के का ही है, इधर से लोगों से इसने वोट भी लिया है, तो ये हम उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि बार बार इसके ऊपर आवाज़ उठाए, क्योंकि उनकी तरफ से असेंबली में आवाज़ नहीं उठती है। तो हमारी मजबूरी होती है हम जाके किसी और हल्के के एमएनएस को हम पकड़ेंगे, किसी और ज़िले के किसी एमएनएस को हम फरियाद करेंगे क्योंकि आप असेंबली के अंदर कोई करारदाद देके जाए। हमारा एक ही मुतालिबा है, हमारी जायज़ मुतालिबा हर प्राइस मुद्दे। के हवाले से आप मुतमईन हैं 50-100 का, क्योंकि आपके मुतासिर में बहुत सारे इस तरह के लोग मुझे कहते हैं कि यार 100 और साइज जो है 50 जो तुम्हारी साइज है वो बहुत ज़्यादा कम दी जाए, क्या इस साइज को हम मानते हैं? देखिए इस वक्त कुछ टाइम पहले याकूब साहब शायद आप भी थे, जो इनका कंसल्टेंट आया था ग्रीन पैलेस में, वो ब्रीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गाँव के अंदर जितने भी विलेजेस हैं उनके अंदर 50 फीट है, 50 फीट है, उससे आउटसाइड का उसने क्लियर नहीं बताया। 100 हैं, कोई 150 हैं, कोई इस तरह के वो बात बता रहे थे। अभी दामाद से दोबारा इन्होंने 100 जो 63 फीट है उससे ला के इन्होंने 100 फीट पे दोबारा निशानात बिठाए हैं। हो सके हम डिमांड कर रहे हैं कि उनके जो आउटसाइड हैं वहाँ पे जहाँ पे आबादी नहीं है, गैर आबाद ज़मीनें हैं, वहाँ पे बेशक 100 भी दे दे। गाँव के अंदर जो 50 फीट हैं, अगर ये आगे हम तरक्की की तरफ देखते हैं तो कुछ चीज़ें हमें खुद भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि तरक्की के लिए हम कुछ कुर्बानियाँ भी देने के लिए तैयार हैं। बात तो ये है, खासकर पोनियाल के अंदर एक आपको पता है कि दरिया के लब्बे दरिया से लेके पहाड़ के चोटी तक यहाँ पे कोई खालिसन नहीं है, यहाँ पे कोई गैर आबाद ज़मीन है ही नहीं, कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, लोगों की अपनी मालिया की ज़मीन है। यहाँ पे मालिया वाली ज़मीन के ऊपर यहाँ पे लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ तबाह की है। यहाँ पे जैसे अभी कोई नाला जा रहा है, वहाँ पे कोई बंदा जाता है तो वो कलांग दे के जा रहा है। कलांग मुस्तकिल कोई कानून नहीं है। मालिया हमारी जो हक मलकियत की तरफ हमें जो वो दे रहा है, हम मालिक बनना चाह रहे हैं, वो हमारा मालिया है। मालिया के तहत हमने दरिया के लब्बे दरिया से लेके पहाड़ की चोटी तक हमने मालिया दिए हैं, वहाँ पे भी वही कंपनसेशन होना चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल कॉम्रेड मुंतशिर साहब से है। आप भी गारकुच हेडक्वार्टर के मेन स्टेक होल्डर है, आप गारकुच वाला साहब का ताल्लुक है, नुमाइंदे बैठे हैं गारकुच वाला में। तो अगर कंपनसेशन जो भी नहीं होता, अगर इसी रेट से पर ज़मीनें दी जाती तो गारकुच वाला के नुमाइंदे और जो मेन स्टेक होल्डर थे उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? हमारा तो एहतजाज ही पहले हमने एहतजाज करना था, बहुत वक्त गुजर गया। जब शुरू में ये जब
सर्वे हो रहे थे उस वक्त दमास के मुकाम पे एहतजाज हुआ था। तो वो एहतजाज डिप्टी स्पीकर साहब ने और यहाँ के रेवेन्यू के जो लोग थे उन्होंने वो एहतजाज को उन्होंने कहा कि हम आपके मुतालबात जो 2 मुतालबात थे कि वो एहतजाज मौखर कराया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक नुमाइंदे की हैसियत से बैठा हूँ। पुनियाल की जो अमायदीन की जो कमेटी है उसका भी मेंबर हूँ। तो गुज़िश्ता 4 महीने से हमारा बाकायदा नशस्त होते हैं। तो ये डिप्टी स्पीकर साहब से के साथ और यहाँ डीसी साहब के साथ जो परसों हमारी नशस्त हुई थी, तो उसमें डिप्टी स्पीकर साहब ने भी कहा था कि ये सेक्शन 4 रिव्यू होगा, क्योंकि मैं कानून भी जानता हूँ। तो 6 महीने से वो एक्सरसाइज होता है। तो कानून ये कि मैं सेक्शन 4 रिवाइज करा के दोबारा रेट का तयन होगा। और दूसरा जो नुक्ता था हमारा बंजर अराज़ियात का, तो पुनियाल के अंदर क्योंकि मैं पुनियाल के नुमाइंदों का एक हिस्सा हूँ, तो आज के ये भी हम चूँकि पुनियाल का एक ठीक है टाउन एरिया के लोगों की कमेटी नहीं बनी थी। तो आज टाउन एरिया के जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हम भी कमेटी बनाएंगे। आज कमेटी बना के, क्योंकि पुनियाल के तमाम गाँवों के जो नुमाइंदे थे उनकी कमेटियाँ भी बन चुकी हैं। उनके अवाम ने, मुतासरीन ने उनको मतलब ये हक दिया है कि आखिर हमारा अगर ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला जो हम चाहते हैं, तो कि पुनियाल के हदूद के अंदर, क्योंकि एक नुक्ते पर हम पुनियाल में आ सकते हैं, क्योंकि पुनियाल में कोई खालिसा ज़मीन नहीं है और गवर्नमेंट भी कोई काम शुरू नहीं कर सकती जब तक यहाँ के लोग इजाज़त न दें। तो उसके लिए हम कल परसों अपना लाएअमल तैयार कर रहे हैं। कल भी हमारी सेशन है पुनियाल के अमायदीन के साथ। तो मुमकिन है कि कल ही हम एहतजाज का ऐलान करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। हमारे प्ले कार्ड से भी, हमारे बैनर से भी बने हुए हैं। तो कि हम एहतजाज के लिए तैयार हैं। और एहतजाज के बगैर हमने जितने भी सेशन हमारे पिछले वक्तों में हो गए हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ है कि हमने महसूस किया है कि एहतजाज के बगैर, आवाज़ उठाने के बगैर, हक के लिए जब तक हम खड़े नहीं होंगे और हम जब तक एहतजाज करके अपने हुकूक के लिए मनवाने की सदा नहीं उठाएंगे, तो उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है। क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कानूनन भी ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट कचहरी में भी नहीं जा सकते हैं। तो लेकिन हम अपने हक के लिए जो भी हमसे हो सकता है हम करेंगे, लेकिन भरपूर मुनज़्ज़म अंदाज में करेंगे। क्योंकि ये हमारे जो पुनियाल के अमायदीन ने ये पिछले 3-4 महीनों से जिस तरह सब्र और तामुल के साथ उन्होंने सेशन किए हैं, आपस में उन्होंने कहा है कि क्योंकि पुनियाल का जो राजवाड़ा है उसकी एक अलग तारीख रही है। और यहाँ पे जैसे बकौर साहब ने भी कहा, हमारे जो ये जो लैंड रिक्वेजिशन हो रही है यहाँ पे, ये जो रोड के लिए ये ज़मीनें जो जिद में आई हैं, ये तो हमारे मालिये की ज़मीन है। ये मतलब जो है ना, जहाँ पहाड़ है, पत्थर है या चट्टान है या अलाब दरिया है, कहीं पे भी वो हमारे मालिये की ज़मीन है। तो मालिये की ज़मीन पर कम से कम पुनियाल के अंदर ये इत्तेफाक है कि पुनियाल के लोग अपने हक मलकियत की ज़मीन 1 इंच भी ज़मीन के ऊपर भी काम करने नहीं देंगे, कि जब तक हमें खुश करके हमारा मुआवजा, मुनासिब जो मुआवजा है वो जब तक गवर्नमेंट अदा नहीं करेगी, उस वक़्त तक ये मुमकिन नहीं है कि वो यहाँ आके काम करें और भरपूर मुज़ाहिमत होगी। हाँ अब इसका कल पता चलेगा, क्योंकि कल 1 हफ्ता पूरा हो रहा। तो कल के दिन उसके बारे में पता चलेगा कि डिप्टी स्पीकर साहब ने क्या किया है।
वो कह रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर साहब को भी मैं बताऊंगा, और कमिश्नर जो हैं मनपिन का इंचार्ज है लैंड का, उसका रेवेन्यू का, तो उससे भी बात हो गई है। और 2-3 दिन पहले वो कह रहे थे कि उधर वजाला के पास भी एक कमिश्नर भी थे और दूसरे हुकाम भी थे, जिम्मेदार भी थे, वहाँ मीटिंग हो गई थी इस हवाले से। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि मेरा हल्का सफ़र हो रहा है और मेरे लोग सफ़र हो रहे हैं, हमारी ज़मीन सफ़र हो रही है, तो मैं खुद मुतासिन में शामिल हूँ, तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा। हम पुरुमीद हैं, ताहम अगर उस तरफ से अगर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी वक्त भी कम है, क्योंकि वक्त अब हम बहुत ज़्यादा है ना, शुकूक शुबात हैं कि लोगों के खदशात हैं। एक तो आज तक हमारे मुताबिक तो सेक्शन 9 भी क्लियर हो चुका होगा, मतलब जो है ना इस तरह है ना, तासुर तो इस तरह दिया जा रहा है। तो अभी सेक्शन 4 की बात आ रही है, तो जैसे एस साहब ने भी कहा, कानूनी पहलुओं पे भी हम उतरते हैं। ऐसा कोई कानून जो आवाम को डिलीट करने के लिए तो कोई कानून नहीं बना है ना, तो कानून में भी है। डिप्टी स्पीकर साहब भी एक कानूनदान भी हैं, तो उन्होंने खुद अपने ज़ुबान मुबारक से कहा कि भाई ये हल होने वाली चीज़ें हैं, मैं करूँगा, भरपूर कोशिश करूँगा। ताहम अगर डिप्टी स्पीकर साहब का कहना ये है कि एहतजाज ना हो सके, एहतजाज रुक जाए, लोग सड़कों पर ना आए, तो उसका इसका एहतराम करते हुए हम ब्रेक किया है, वरना 1 हफ्ता पहले हमारा एहतजाज हो चुका होता। तो इसको आखिरी इसकी तरफ जा रहे हैं। एस साहब ने भी तफसीलन बात की और कॉमरेड मकसद शाह भाई ने भी तफसीलन बात की। बात यह है कि अब हमने पहले भी कहा है कि इससे पहले बहुत सारी करारदादें हमने कभी डीसी को दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे भी यहाँ से एक करारदाद गज़र की तरफ से गई है, और यहाँ पे हमारा जो मुंतखब नुमाइंदा है उसको भी हमने दी है। अभी तक कोई यहाँ पे सामने कोई हल नहीं आ रहा है, तो लिहाजा हमारी ये गुजारिश होगी कि पौनियाल की जो कमेटियाँ बनी है हमारे यहाँ पे, पौनियाल से लेके आगे बरसत तक हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। पौनियाल की कमेटी का कल से हमारी दोबारा मीटिंग है, पौनियाल लेवल पे मीटिंग है। उसके बाद हम यहाँ पर अगले लाएमल का हम तय करेंगे कि उस वक्त हम एहतजाज कब करेंगे, एहतजाज की तरफ जाएँ या हमें कोई आके मुतमईन करे। अगर मुतमईन नहीं कर सकता है, हमारा अगला लाएमल शायद एहतजाज ही होगा। और इससे पहले हम एक और भी पैगाम देते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुतासरीन और हेडकोार्टर के लोगों को हमने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लाए हैं। अगली जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो उस वक्त पूरे मुतासरीन को लेकर हम प्रेस क्लब में लाएंगे। लाने के बाद हम बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। तो आखिर में आप तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया, आपने हमें कवरेज देने के लिए अपने टाइम निकाले। थैंक यू वेरी मच।